Good morning everyone. Welcome to our exercise 10.5 part 2. Okay, in this we will discuss first. I will discuss some two questions of this exercise, important question. Then I will go further for that. In this our 29th question is that you have given pth term of GP is P. GP series की pth term आपको P given है और qth term that is Q. So that is given in your question. So according to GP series formula, you have to use these two equations. This is equation 1, this is equation 2, and you have to find the nth term. That should be, answer is given in your question, p raised to power n minus p, q n minus p, 1 upon p minus q. So that should be your answer of the nth term. Okay, so in this first you have to apply the formula. Like pth term of GP series is ARP minus 1 is equal to P, and here ARQ minus 1 is equal to Q. Okay, so here these are the two equations. These are the first equation. This is my second equation. Now what I will do, I divide first by 1. Why I divide first by 1? Because here P is upward, Q is downwards. So that's why I divide equation 1 by equation 2. So what it will be, ARP minus 1, ARQ minus 1, then P by Q. A will be cancelled and your required term in the form of R is P minus Q is equal to P by Q. Then if you take the root form, so that will be P by Q. Sorry, here Q is the capital because this is the Q. So that is confusion always like that, because Q is here, like here. Then here is P upon Q raised to power 1 by P by Q, because then when power shift to another side, that changes to fractional power. So this is the R value. Okay, now here if I go with the A value, so I substitute this value of R in my first equation. ARP minus 1 is equal to P. So here when I apply this value here, in place of, first if I just find the A value, that will be P upon R P minus 1. Okay, now one thing is that आप जनरली क्या करते थे कि A की वैल्यू निकालने के लिए R की वैल्यू इसमें सब्सिट्यूट करते थे. अभी मैं R की वैल्यू को P minus 1 रहने देती हूँ, because reason is that if I apply here P by Q 1 by P minus Qth term, Qth power, so it will be give you bigger calculation. So better I reduce R in the smallest form, then I apply this value in that. So it will be easier. So I keep A value as it is from first equation, because we have to find the basically nth term. Now you have to find the nth term. Your nth term formula is AR n minus 1. First we apply A value here, P by R, P minus 1, then R n minus 1. So it will be easier to equate the R value at one place. So that will be n, 1 will be cancelled. So what is left? N minus P will be left. R raised to power n minus P will be left. Okay. Now here if I have only one R, now I apply this value in place of here. So that will be P. N minus P will be multiplied with 1. So that becomes P by Q, N minus P by P minus Q. Now here this is P, this is P. If base is same, power will be added. So if I separate the power, that become 1 plus N minus P by P minus Q, and here Q power is N minus P by P minus Q. So when you solve this one, you take the LCM of powers. So P minus Q plus N minus P by P minus Q, and Q keep as it is, N minus P by P minus Q. Now here if you look at just fractional power, both has denominator same. So denominator power we take it common. So here P will be cancelled. So N minus Q, every time I write this one, this is a condition, this is capital Q, that is the value. Okay, so this is the Q, so this is N minus P, and whole denominator will be taken it outside as the common power, 1 by P minus Q. That's I want to prove in this question. So here
Now in your 22nd question here, it is given that three numbers whose sum is 70 are in GP series. If each of the extreme is multiplied by 4 and the mean is 5, the number will be in AP. Actually in this question you have to find the GP series. First we will consider our three numbers of GP will be A by R, A and AR in GP. So these are the three considerable number of GP. Now said that if I add this three numbers A by R plus A plus AR, my answer will be 70. अगर मैं इन तीनों नंबर को ऐड कर दूंगी तो मेरा आंसर 70 आ जाएगा. बट अगर मैं इसके साइड वाली दोनों एक्सट्रीम टर्म्स को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके मिडल वाली टर्म को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ लाइक दिस, 4 टाइम्स AR, 5A एंड 4 टाइम्स AR. सो ये सीरीज बन जाती है आपकी AP सीरीज. तो मेरी ये दो कंडीशंस है सॉल्व करने के लिए. ओके अगर तुम्हें यहाँ पे तो मैं A को ना मेरे पास A वैल्यू है ना मेरे पास अभी R वैल्यू है. ओके सो इसको भी कीप इट साइड बिकॉज if we go find the any one value either A and R we can solve this one value. Now come to this point here 4 into A by R, क्योंकि आपके क्वेश्चन में था एक्सट्रीम टर्म्स को हर एक टर्म को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए और बीच वाली मीन टर्म को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो AP सीरीज़ की कंडीशन बन जाती है. मैं AP सीरीज़ का रूल है 2 टाइम्स द मिडल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म. तो यहाँ पे हम AP सीरीज़ का रूल अप्लाई करेंगे. यहाँ पे देखो A कॉमन है सब में, A यहाँ पे भी कॉमन है यहाँ पे भी कॉमन है तो A कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा. मेरे पास सिर्फ बचा 10 by 4R plus 4R. Now I will cross multiply this. 10R is equal to 4 plus 4R square. My equation become 4R square minus 10R plus 4 is equal to 0. If I take 2 common, so that will be R square 2R square minus 5R plus 2 is equal to 0. तो मेरी जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी 2R square minus 5R plus 2 is equal to 0. उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट मेथड है मिडल टर्म स्प्लिट मेथड एंड ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R. So if I look at that minus 5, minus 4, minus 1 give me minus 5, but when I multiply minus 4 into minus that give me 2 into 2 positive 4. So 2R square minus 4R minus R plus 2 is equal to 0. I take 2R common, R minus 2 minus 1, R minus 2 is equal to 0. Now I take R minus 2 common, 2R minus 1 is equal to 0. Here I got the two values of R. एक आपके पास 2 आ गई, सेकेंड वन इज 1 by 2. तो आपने क्या करना है 1 by 1 ये दोनों वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करनी है. पहले तो मुझे चाहिए A की वैल्यू, क्योंकि A की वैल्यू तभी निकलेगी ये दोनों वैल्यू यहाँ पे जब अप्लाई होंगी. अब जब मैंने पहले R इज इक्वल टू 2 अप्लाई किया है यहाँ पे R इज इक्वल टू 2, चाहो तो पहले इसको अरेंज कर लो वो ज़्यादा बेटर होगा, तो नहीं तो आपको फिर से LCM लेना पड़ेगा. सो अगर मैं यहाँ पे A रहने दूँ, यहाँ पे 1 plus R square is equal to 70R. Cross multiply the LCM, then A value keep as it is, so it will be easier for you to solve. If R is equal to 2, अब R को मैंने पहले 2 पुट किया, यहाँ पे आ गया 1 plus 2 plus 4 is equal to 70 into 2. A is equal to 70 into 2 by 7, so that gives me 20. यहाँ पे आपके आगे A की 20 वैल्यू. अब सेकेंड R की वैल्यू से भी चेक करेंगे. R इज इक्वल टू 1 by 2, देन A 2 प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, सॉरी यहाँ पे 1 by 2, 1 by 4 इज इक्वल टू 70 into 1 by 2. यहाँ पे अगर आपने LCM लिया 4, यहाँ पे आ गया 4 plus 2 plus 1 is equal to 35 when you divide this one. Now A is equal to 35 by 7 into 4, 7, so that is again 20. So that means दोनों केसेस में अगर A की वैल्यू आपकी 20 आ रही है सो दैट इज़ योर करेक्ट वैल्यू, क्योंकि 2 डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट कंडीशंस में कई बार होती है. अब A की वैल्यू 20 है, R की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग टू आपकी सीरीज़ ये वाली जनरेट होगी.
पहली वाली सीरीज बनेगी r इज इक्वल टू 2 पे 20/2 20 एंड 20 इंटू 2 दैट इज 10 20 एंड 40। इसी तरह से अगर r इज इक्वल टू 1/2 हो जाता है तो ये बन जाएगा आपका 40 20 और 10। तो ये आपकी सेकंड सीरीज बन गई, ये आपकी रिक्वायर्ड सीरीज बन गई। अब आपके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आई विल डायरेक्टली एक्सप्लेन टू यू दैट एक्सरसाइज हियर। दैट इज 16 तक तो हमने लास्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए थे, 17 क्वेश्चन था आपका। I will just quickly review for that of your exercise. Find the geometric series whose fourth term is 54. अगर एक geometric series की GP series की आपके पास फोर्थ टर्म 54 गिवन है, सेवन्थ टर्म 1458 है, आपको सेवन्थ टर्म निकालनी है। Directly apply the GP series formula. AR cube is equal to 54, AR6 is equal to 1458. Now you have to divide second by first. You will get the R value 3. और यही R value 3 फर्स्ट में अप्लाई करोगे, यू विल गेट द A value 2. When you apply these both values in your series, normal series like AR square, you will generate the sequence 2 6 18 and series is 2 plus 6 plus 8. 18th क्वेश्चन में था आपका आपको जो फोर्थ टर्म थी वो सेकेंड टर्म का स्क्वायर गिवन है 18th क्वेश्चन में, और आपको जो टर्म 1 है वो -3 गिवन है, आपको टर्म 7 निकालनी है। सो फॉर दैट यू नीड द आर वैल्यू। जो आपको इक्वेशन गिवन है उसी में से आप आर की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करोगे। T4 मीन्स ए आर क्यूब, T2 मीन्स ए आर होल स्क्वायर। सो ए आर इज इक्वल टू ए इज लेफ्ट एंड ए वैल्यू इज -3, तो आर ए की वैल्यू सेम है। T7 इज ए आर 6, सो व्हेन यू अप्लाई यू विल गेट -2187। 19th क्वेश्चन में था द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। पहली जो 3 टर्म्स हैं जीपी सीरीज की, कोई भी जो आप नॉर्मली कंसिडर करते हो, नॉट सीरियल ऑर्डर इन द अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। 3 टर्म्स कॉन्सिक्यूटिव टर्म के लिए A/R A ही हम कंसिडर करते थे। इनका टोटल 39/10 है। आपको इसकी कॉमन रेशियो निकालनी है और टर्म्स निकालनी है, और इनका मल्टीप्लाई, जब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आता है। तीनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास ए की वैल्यू आ गई। यही ए की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करनी है। आर की वैल्यू निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से। आपकी 2r की वैल्यू निकली 5/2 एंड 2/5। जैसे ही आपकी आर की वैल्यू निकली आपकी टर्म जनरेट होगी 2/5 1 5/2। 3 नंबर्स आर इन AP। अगर आपके पास 3 नंबर्स AP सीरीज में है और उनका टोटल 15 है, बट उन्हीं नंबर्स में अगर आप 1 4 9 कॉन्सिक्यूटिवली मीन रिस्पेक्टिवली फर्स्ट टर्म में 1 ऐड किया, सेकंड टर्म में 4 ऐड किया, थर्ड टर्म में 19 ऐड किया, तो जो आपकी नया नंबर बनता है वो जीपी सीरीज का बन जाता है। आपको फाइंड करना है वो नंबर क्या थे। 3 numbers in AP we consider A minus D, A plus D. If we add we get A value. तो नंबर आपके बन गए 5 minus D 5 5 plus D। अब कंडीशन ये कि इसमें 1 4 और 19 ऐड कर दिया जाए तो जीपी सीरीज बन जाती है। तो जीपी सीरीज की कंडीशन है सेकंड टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। When you apply this one, your quadratic equation will be there. After solving this quadratic equation or middle split method, so you will get two values of 3, D 3 and -21, and according to that, अब यहाँ पे 3 और -21 आपने जो आपके नंबर्स ये वाले जो ओरिजिनल नंबर थे A minus D, A और A plus D, तो इसमें आपने अप्लाई करना है, एडेड नंबर्स में आपने ऐड नहीं करना। तो यहाँ से आपके 3 सीरीज जनरेट हो जाएंगी, सीक्वेंसेस 2 5 8 एंड 26 5 -16। 21st क्वेश्चन है, आपके पास 3 नंबर्स हैं फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। इंक्रीजिंग जीपी का मतलब है जो नॉर्मल आपके फॉर्मूलास हैं A R स्क्वायर, क्योंकि अगर सिर्फ इंक्रीजिंग वर्ड ना लिखा होता तब आपके 3 नंबर्स होते A डिवाइड बाई R, A और AR। अगर इंक्रीजिंग जीपी लिखा है मीन्स पावर इंक्रीज हो रही है। इफ़ द मिडल टर्म इज डबल देन द न्यू नंबर आर इन AP। अगर मैं मिडल टर्म को डबल कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो जो नया नंबर बनेगा वो AP सीरीज़ में बन जाता है। आपको GP सीरीज़ की कॉमन रेशियो निकालनी है। अब यहाँ पे GP का कॉन्सेप्ट तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो जो भी आपकी R की वैल्यू निकलेगी ओब्वियसली वो GP का भी पार्ट होगा। अब R की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि जब मेरा ये कन्वर्शन AP सीरीज़ में ही होगी, तो यहाँ पे मैंने AP सीरीज़ का कंसेप्ट यूज़ करना है, दैट इज़ 2 टाइम्स द मिडल टर्म
इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो यहाँ पे जब आपने इक्वलेट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, ए की वैल्यू जो है आपकी, ए ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर 2 प्लस माइनस √3। अब आर की वैल्यू तो नेगेटिव नहीं लेनी क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे 2 प्लस √3। 22nd क्वेश्चन आई जस्ट सॉल्व इन दिस योर video। 23rd क्वेश्चन, लेट द नंबर्स आर ए बी सी डी। 23rd क्वेश्चन में था आपके देर आर 4 नंबर्स है आपके पास, इस तरह से है कि फर्स्ट 3 नंबर्स ए पी सीरीज में है और लास्ट वाले 3 नंबर जी पी सीरीज में है। ये कंडीशन आपको गिवन है 23rd क्वेश्चन में। तो इन्होंने बोला कि अगर मैं फर्स्ट और थर्ड टर्म को ऐड कर दूं, क्योंकि ये टर्म की वैल्यूज़ हैं, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। अगर फर्स्ट और थर्ड टर्म को ऐड करूँ तो उसका टोटल 2 आता है, अगर सेकेंड और फोर्थ टर्म को ऐड करूँ तो उसका टोटल 26 आता है। तो अल्टीमेटली आपने यहाँ पे जो टर्म्स हैं, ए बी टर्म की वैल्यूज़ हैं, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास जो कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है कि ए बी सी आर इन ए पी। तो ए पी के कॉन्सेप्ट से 2 टाइम्स द मिडल टर्म इज इक्वल टू ए प्लस ए, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। बी सी डी आर इन जी पी, तो जी पी सीरीज के कॉन्सेप्ट से मिडल टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म, यहाँ से आपकी सेकेंड इक्वेशन जनरेट हुई, फर्स्ट और सेकेंड के। बाकी की 2 इक्वेशंस आपकी जो आपके पास गिवन थी, टर्म 1 प्लस टर्म 3 इज इक्वल टू 2 और टर्म 2 एंड टर्म 4 इज इक्वल टू 26। बी प्लस डी, टर्म 2 की पोजीशन पे बी प्लस डी था, ए प्लस सी इज इक्वल टू 2। ओके, ये आपकी थर्ड और फोर्थ 4 इक्वेशन बन गई। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन में ये जो आपकी थर्ड इक्वेशन थी वो आपने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ से आपकी बी की वैल्यू आ गई। यही बी की वैल्यू आपने फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की, डी की वैल्यू आ गई। जैसे आपकी बी और डी की वैल्यू आ जाती है, आपने सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू 2 आ रही है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि सी स्क्वायर था, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक बार आपका पॉजिटिव आ जाएगा, एक बार नेगेटिव। तो जैसे अगर आपका सी इज इक्वल टू 5 है या सी इज इक्वल टू -5 है, तो ये सी की वैल्यू डिफरेंट टाइप की आपने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आपकी 2 डिफरेंट ए की वैल्यू आ जाएंगी और 2 डिफरेंट सी और ए की वैल्यू के अकॉर्डिंग टू आपके ये जो ए बी सी डी की 2 सीरीज आपकी जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे मेनली आई रिपीट अगेन, यहाँ पे 4 इक्वेशंस बनी थी क्योंकि आपकी वैल्यूज़ निकालनी थी ए बी सी डी, जो टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 की वैल्यूज़ के वेरिएबल्स थे, उसकी वेरिएबल की आपने वैल्यू निकालनी थी। तो आपने 2 इक्वेशन जनरेट की, पहली वाली दोनों इक्वेशन तो ए पी जी पी सीरीज़ के कॉन्सेप्ट से जनरेट हुई। नेक्स्ट वाली 2 इक्वेशन जो आपको टर्म 1 और टर्म 3 इज इक्वल टू 2 दिया था, टर्म 2 और टर्म 4 26 दिया था, दैट इज टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 और टर्म 4 बी डी। तो यहाँ से आपकी 4 इक्वेशन जनरेट हुई। अब आपने थर्ड इक्वेशन, क्योंकि ए प्लस सी यहाँ पे था, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके बी की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके डी की वैल्यू निकाली। जैसे ही आपके पास डी बी और डी की वैल्यू आ गई, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आपकी सी की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी प्लस माइनस फॉर्म में। तो आपने दोनों वैल्यू बारी बारी से फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके आपकी 2 ए और सी की वैल्यू होंगी और उन्हीं दोनों डिफरेंट ए और सी की वैल्यू को लेके आपने ए बी सी डी की वैल्यू जनरेट करके नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट जो आपका 24th यू हैव टू डू योरसेल्फ, बिकॉज उसमें सिर्फ आपका जीपी सीरीज का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इफ ए बी सी आर इन ए पी एज वेल एज इन जी पी प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो आपने ए पी सीरीज का कंसेप्ट 2 टाइम्स बी इज इक्वल टू ए प्लस सी और जी पी सीरीज का कॉन्सेप्ट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो उनको कंपेयर करके आपने तीनों को इक्वलाइज करना है। सेकेंड पार्ट में भी आपने यही करना है, ए बी सी आर इन ए पी एज वेल एज इन जी पी यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी। तो यहाँ पे आपने वही ए पी और जी पी सीरीज़ के बोथ कॉन्सेप्ट यूज़ करके ऊपर फॉर्मूला में रिप्लेस करने हैं और उनकी वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करनी है। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन है, टर्म ऑफ जी पी विथ फर्स्ट टर्म ए। जी पी सीरीज़ की फर्स्ट टर्म आपकी ए गिवन है, रेशो आपका आर है, ओके। और आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर जो 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स अगर इनका स्क्वायर कर दिया जाए, ये मेरी सीरीज़ बन जाती है, ये दैट आर ऑल्सो इन जीपी। इसमें आपको फर्स्ट टर्म, रेशो और nth टर्म ढूंढनी है।
क्योंकि अगर मैं जीपी सीरीज़ की टर्म का स्क्वायर भी करूँगी तो वो स्टिल जीपी सीरीज़ में रहेगी। तो स्क्वायर करने के बाद उसकी रेशियो फर्स्ट टर्म और nth टर्म क्या होगी वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। रेशियो के लिए सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म आपकी ऑलरेडी ए स्क्वायर में है, nth टर्म ए आर एन माइनस वन। ए और आर की जो वैल्यू है आपकी यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे था आर, रेशियो था आर स्क्वायर, वही आपने अप्लाई करके दैट विल बी योर आंसर। 26 फर्स्ट पार्ट में आपको लिखा है ए बी सी आर इन जी पी। अगर ए बी सी आपकी जी पी सीरीज में आपको शो करना है 1/a 1/b 1/c आर ऑल्सो इन जी पी। आपने इसी को कॉन्सेप्ट को उठाना है, मिडल टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। उससे अगर आपके डायरेक्ट इसकी जीपी सीरीज का कॉन्सेप्ट बन जाता है, सो दैट विल ऑल्सो इन जीपी। नेक्स्ट इज इफ k is any positive real numbers and ka, kb, kc are three consecutive terms of gp, you have to prove that abc are three consecutive terms of ap. Then you apply the gp series concept also, middle term square is equal to multiplication of first and third term, so base is same, equalize the power, that will show that abc are in ap. नेक्स्ट इज आपको पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ टर्म ए पी सीरीज़ की दी है और आपको ये प्रूव करने की जी पी सीरीज़ की पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ टर्म वो आपकी है टर्म्स ऑफ एनी जी पी सीरीज़ एंड जी पी। अगर पी क्यू आर उसमें ए पी सीरीज़ में हो तो जी पी सीरीज़ की कोई भी पी एथ क्यू एथ आर एथ टर्म वो आपको टर्म्स ऑफ एनी जी पी आर इन जी पी, तो वो जी पी सीरीज़ में ही आपकी रहेगी। एक्चुअली इसमें आपने क्या करना है कि यूज़ तो आपको पी क्यू आर को करना है, पी क्यू आर को यूज़ करते हुए आपको वो प्रूव करना था, तो हम इसका ऑपोजिट लेके चलते हैं। हम पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ टर्म ऑफ जी पी सीरीज़ लेते हैं, इसी को जी पी सीरीज़ के कॉन्सेप्ट से यूज़ करते हैं और देखते हैं क्या मेरा एग्जैक्टली जो ए पी सीरीज़ का कॉन्सेप्ट बनता है इसमें। तो जैसे ही मैंने मिडल टर्म स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म स्क्वायर वैल्यूज़ अप्लाई की तो बेस सेम हुआ, तो पावर इक्वेट की, तो एग्जैक्टली मेरा वो कॉन्सेप्ट आ गया दैट शोज दैट पी क्यू आर इन ए पी। तो यही हमने बेसिकली शो करना होता है। मैंने आपको लास्ट भी बताया था कई बार ऐसी टर्म होती है कि जो प्रूव करना होता है वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, तो हम उसी को लेके ऑपोजिट जाके जो हमें गिवन होता है हम उसी को प्रूव करते हैं। 27th क्वेश्चन है आपका, अगर आपकी ए बी सी आर इन जी पी सीरीज़ है, आपको प्रूव करना है फॉलोइंग आर ऑल्सो इन जी पी। तो ये आपको प्रूव करना है कि ये सीरीज़ भी आपकी जी पी सीरीज़ में होनी चाहिए। तो पहले तो उस कंडीशन पे आपको पहले आर कंसिडर करना है कॉमन रेशो, और ये जो टर्म्स की वेरिएबल्स हैं टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3, इनकी वैल्यूज़ आपने पहले अरेंज करनी है, तभी आप प्रूव कर पाओगे। बी इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, ए आपका ए ही रहेगा। अब आपने क्या करना है, पहले इसको जीपी सीरीज़ के कॉन्सेप्ट में लिखना है, बी क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब सी क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड पिक की, जो आपने ऊपर वैल्यूज अरेंज की थी बी और सी की, वो रिप्लेस की। इफ़ यू विल गेट एग्जैक्टली राइट हैंड साइड दैट मीन्स दिस इज प्रूफ। आपको जो सेकेंड पार्ट है वो भी इसी तरह से प्रूव करना है। मिडल टर्म का स्क्वायर आपकी लेफ्ट साइड हो जाएगी और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपकी राइट साइड। इसमें भी आपने क्या करना है, बी और सी की जो वैल्यू कंसिडर की थी, बी की ए आर और सी की ए आर स्क्वायर, वो अप्लाई करना है। चेक करना है इज इट योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड। 28th क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़। अब वहाँ पे एक और टर्म ऐड होगी डी, तो उसमें भी बी, अगर बी ए बी सी डी ये टर्म्स जीपी सीरीज में है तो आपको ये प्रूव करना है कि दीज थ्री टर्म्स आर ऑल्सो इन जीपी सीरीज। देन वी विल टेक आर इज अ कॉमन रेशो। फर्स्ट वी विल कंसिडर बी इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, डी इज इक्वल टू ए आर क्यूब। तो ये मैंने बी सी डी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू जीपी टर्म के अकॉर्डिंग टू अरेंज की। उसके अकॉर्डिंग टू अगर मुझे ये प्रूव करना है तो मेरी मिडल टर्म का स्क्वायर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के, फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट है, बी की जगह आपने ए आर स्क्वायर ए आर अप्लाई करना है, सी की जगह ए आर स्क्वायर, डी की जगह ए आर क्यूब। लेफ्ट साइड और राइट साइड चेक करनी है। इफ़ योर आंसर इज सेम सो that is proved. 29th question I just solved in the video. Next is your 30th question is the number of bacteria in a certain culture. एक कल्चर है, कल्चर मीन्स जो एक सैंपल वगैरह लेते हैं उसमें बैक्टीरिया स्टार्ट करने से पहले 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट थे उसमें, और जैसे ही स्टार्ट किया तो एवरी आवर में वो डबल होता गया, मतलब 2 टाइम्स डबल होता गया। मीन्स जो रेशो है वो उसकी 2 आ गई। ओके, क्योंकि 2 उससे मल्टीप्लाई होता गया। जैसे फर्स्ट आवर में तो वो 30 ही था,
जैसे आपका T1 आ गया, T मीन 0 आवर, 0 आवर में तो आपकी A वैल्यू थी। टर्म 2 आ गया कि फर्स्ट आवर कंप्लीट करने के बाद उसकी वैल्यू आई 30 इंटू 2 60, और सेकेंड आवर में टर्म 3, क्योंकि यहाँ पे जो पहली टर्म 1 थी वो आपका 0 आवर था। 0 आवर में सीधा A इज इक्वल टू 30 था। जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं किया था तो बैक्टीरिया की क्वांटिटी 30 थी। जब फर्स्ट आवर पास आउट हुआ तो वो सेकेंड टर्म बन गई, सो दैट इज 60। आपके क्वेश्चन में पूछा कि सेकेंड आवर में कितना था, सेकेंड आवर में टर्म थर्ड, तो 120 हो गया बैक्टीरिया की ग्रोथ। फोर्थ आवर दैट मीन्स फिफ्थ टर्म आपकी 480 होगी, और nth आवर में, तो nth आवर का मतलब है जो यहाँ पे पोजीशन है n+1 है अकॉर्डिंग टू आवर, सो ARN 30 इंटू 2 रेज़ टू पावर n योर रिक्वायर्ड आंसर। इन 31st क्वेश्चन व्हाट विल बी ₹5000 अमाउंट इन 10 ईयर्स, के 10 ईयर्स अगर किसी ने डिपॉजिट कराया बैंक में 5000 रुपीज़, तो अगर उसको 10% एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि एवरी ईयर वही जो इंटरेस्ट ऐड होके वो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। ओके, तो एवरी ईयर उसको जितना इंटरेस्ट मिला तो आफ्टर 10 ईयर उसको कितना वापस मिलेगा। जनरली आपका अमाउंट का फॉर्मूला तो यही है, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 इंटू n, बट हमने GP सीरीज़ के कॉन्सेप्ट से जाना है। तो 10% इंटरेस्ट का मतलब है कि 0.1। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला पूरा मेरी R की वैल्यू के अंडर आ जाएगा 1 + R/100, क्योंकि ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 1 प्लस, बिकॉज प्रिंसिपल हमने कॉमन इसलिए लिया क्योंकि पिछले ईयर का प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर में चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट भी ऐड हो रहा है, तो प्रिंसिपल इंटू 1 + 10/100 रेज़ टू पावर 10। तो ये कॉमन फॉर्मूला जनरेट हुआ आपका, ये रेशो की फॉर्म में आ गया। दिस इज़ माय रेशो, दिस इज़ फर्स्ट टर्म। तो जैसे टर्म 1 आ गई, टर्म 1 में तो 5000 था फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर एक ईयर के बाद तो इंटरेस्ट ऐड हुआ AR, दिस इज माय रेशो। सो अगर आपको ये कैलकुलेट किया दैट इज 1 + 10/100 इज 1.1, 1.1 रेज़ टू पावर 1। अब आफ्टर 10 ईयर कंप्लीट होने के बाद उसको कितना मिला, मीन 11th ईयर में, सो AR 10, सो 5000 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर 10। 32 क्वेश्चन है आपका। 30th, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल की साइड की लेंथ GP सीरीज में है, सो दैट मीन्स AR फर्स्ट टर्म विल बी 9, शॉर्टेस्ट साइड अगर 9 सेंटीमीटर है तो फर्स्ट टर्म 9 सेंटीमीटर आ गई, और तीनों साइड को प्लस करने पर जो पैरीमीटर है वो 37 गिवन है। तो अब आपको साइड्स ऑफ द ट्राइंगल निकालनी, उसके लिए आपने सबसे पहले A कॉमन निकाला, A की वैल्यू 9 अप्लाई की, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से अगर मिडल टर्म स्प्लिट पॉसिबल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने R की वैल्यू फाइंड आउट की, नेगेटिव और पॉजिटिव, R नेगेटिव कंसिडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव 4/3, और यही A और R की वैल्यू अगर आप AR स्क्वायर में अप्लाई करोगे, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल।